بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا اپنی تمام برادری کے لوگوں سے، خاص طور پہ اپنے برادری سے ان کے لیے ایک میسیج ہے کہ 14 اگست کے حوالے سے یہ میسیج میں دینا چاہتا ہوں اپنی برادری کو کہ وہ 14 اگست کو بھرپور طریقے سے، شاعر شان طریقے سے بڑھ کر اس 14 اگست میں حصہ لیں اور پاکستان کی جشن آزادی منائیں۔ دوسری بات اس لیے کہ یہ پاکستان بنانے میں سب سے بڑا جو کردار ہے وہ پاکستان میں قوم کا ہے۔ پاکستان میں بسنے والی میو قوم نے بڑی اس کے لیے قربانی دی۔ یہ ملک اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوا، اس کے لیے 10 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کیا گیا ہے۔ لہذا اس ملک کو بچائیں گے بھی ہم، بنایا بھی ہم نے، اور اس ملک کے لیے کام بھی ہم کریں گے، اس ملک کے لیے ہم لڑیں گے بھی۔ دنیا کا ہر کام وہ کریں گے جس سے ہمارا ملک قائم و دائم رہے۔ میرا تمام اپنے دوستوں ساتھیوں سے یہی گزارش ہے کہ وہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ پاکستان پائندہ باد۔ میرا نام محمد ارشد خان ہے، میں ایڈوکیٹ ہوں اور پاکستان کے تقریباً تمام نئے اخلاق جو ہیں ان کا میں صدر ہوں۔ فی الحال انہوں نے بنایا ہوا ہے عزت کے لیے، لیکن اصل چیز جس موقع کی میں نے سنی بھائی سے، میں بھائی بھٹنڈا اسٹیشن پہ جب 3 ریل گاڑیاں کاٹی تھی کافروں نے، ان میں سے ان گاڑیوں کو تحفے کے طور پر لاہور اسٹیشن بھیجا تھا، تو ایک گاڑی جو ہے ہماری وہ روکی انہوں نے اور اس پہ حملہ آور ہو گیا، اسے مارنے لگے سب لوگوں کو، تو ان میں ہم بھی تھے۔ تو لاشیں جو تھی دروازوں پہ، سیڑھیوں پہ لٹکی ہوئی تھی اور خون بہہ رہا تھا۔ میں نے پھر وہی گاڑی انہوں نے تحفے کے لیے پاکستان کو بھیج دی کہ ان کو بھیج دو پاکستانیوں کو۔ تو اس کے علاوہ بھائی جتنا ظلم جو ہے اس وقت ہوا ہے اسے کہنے لگے نا تو نہیں کہا جاتا، ہمارے پاس بیان نہیں ہو سکتا، میرے تو وہ سین یاد آ جاتے ہیں، سامنے ہو جاتے ہیں۔ لیکن جس ہمت سے اور شجاعت سے میری میو قوم نے پاکستان آ کر ہمت سے کام لیا ہے، اور الحمدللہ آج وہ اس دوڑ میں جس میں ہم بہت پیچھے تھے اس میں آج شامل ہیں، تو میری ہر ایک سے یہی دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کو قائم اور دائم رکھے۔ پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم۔ محمد طاہر خان، میواتی بیٹھک، لاہور۔ میری والدہ نے بتائی کہ جب بھگا بھگی ہوئی تو وہاں میں اتنی کٹا ہوئی کہ وہ دھاڑ ہی، اور وہاں میں اتنا مسلمان شہید ہویا، تو ان نے بتائی کہ میں ان نیچے چھپ گئی ان کے جا وقت وہ کٹا ہو رہی ہی، اور جب وہ سارا ملیا میٹ کر گا، انہیں شہید کر گا لوگوں نے، تو پھر ہم جو بچا ہویا ہا کچھ لوگ، پھر وہ کھڑا ہویا اور پھر ایسے پاکستان کی طرف ہم آیا، اور بہت مشکلات راستہ میں دیکھی۔ ان قربانین کو ہم نے بالکل ادراک کرنا چاہیے، اور ہم نے سوچنا چاہیے کہ پاکستان ہمارا بڑانے بنائے ہوئے ہیں اور ہم نے واقعی حفاظت کرنی ہے۔ میو قوم زندہ آباد، پاکستان پائندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سلیم میو آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میواتی قوم نے پاکستان کے بننے میں کتنا کردار ادا کیا۔ میں اتنی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ جی میری دادی مجھے سنا رہی ہے، میواتی میں بتاتا ہوں، میری دادی مجھے بتا رہی ہے کہ بیٹا میں صبح ایک روٹی میں نے توا پہ رکھ رکھی ہی، ایک نیچے سیک رہی ہی وائے کھڑی کر کے چولہا میں، اور ایک پیڑوں میرے ہاتھ میں ہو، تو یہی دوران جو ہے نا آواز آئی، یہ دھاڑ چڑھ گئی، اور آپ یقین کرو کہ بھی ہم بھرو گھر ہو، پورا سامان ہمارا، ڈھور ڈنگر ہمارا جو بانکڑا پسیلی ہا، جو ہمارا زیورات تھا، جو تن پہ پرانا کپڑا ہے نا، ان نہیں لے کے ہم بھگ پڑا۔ اور میری جو بہن ہی، وہ میرا جو بیٹو ہو، میرے چاچا لگے ہے،
तो वो मोलू गाली ने दे रहा, मम्मी भगिया भगिया देख मेरी तेरी वो जो बहाने वो कट रही है मौसी। और वाकई सामने उन्हें एक हिंदू ने वाकई पेट में बर्छा मारा कि साड़ी अंतरी बाहर आ गई। तो हूँ सुनो कि हम भगा और भग के जहाँ तक हमने जानो गया। फिर जो मेरा चाचा हो वो दोबारा वापस गयो और देखा तो दादी जो है ना वहाँ पूरा पेट फटो पड़ो और अंतड़ी वाकी बाहर है, लेकिन सांस आ रहा। तो वह ने अपना फेंटा उतार के वहाँ को पेट की सारी अंतड़ी इकट्ठी करी और वहाँ के अंदर करके पेट के ऊपर से कस के और एक झुंडान में वो रख दी कि कोई एक कुत्ता बिल्ली वाय ना छेड़ा। तो और वह ऐसे छोड़ के आ गया कि बस ये तो बस मर जाएगी। लेकिन अल्लाह को करना हो कि 6 महीना बाद वो वापस आ गई। सुनो है कि भी हम मिलिट्री आई और वह उठा के ले गई हॉस्पिटल में इलाज हो और वो बच गई, तो पाकिस्तान में आके फौत हुई। तो असल हमारी कौम ने, हमारा बाप दादा ने, हमारा बहन भाइयों ने खिदमत करी है, लड़ा हाँ और खून बहायो है। खून की बल्कि खून बहायो ना, खून की नदी बहाइयाँ। जो ही मैंने वाक़या आपको सुनाया, आप अंदाज़ा हो जाएगा कि या में कितनी या कि बैकग्राउंड कहाँ होगी। एक ही हमारी चाची थोड़ी शहीद हुई होगी या ज़ख्मी होगी, कितना बंदा वहाँ में मरा। और मेव कौम ही जहाँ पे सबसे ज़्यादा जुल्म हो, और जुल्म भी ऐसा होया कि वाको जो मिलिट्री ही वो भी इंडिया की ही जहान वे हिंदू हमला करे हा हूँ जो है वो देख ले वे कि मुसलमान के इलाके वो आवे ही ना ही। वो जब सारा कुछ है हिंदू कर के चला जावे तो फिर वे पीछे से आवे। तो ये जुल्म सया ने कि 1 रुपयो वो लेके ना आया, हीन सारे का सारा लुटा फुटा घर हिन वाल्टन आवे आके। और 10-10 दिन वे वो बता रही है कि हमने टाली का पत्ता खा के गुजारो करो, सिटालो रास्ता में मिले वाए खा ले वे आके भी जब कुछ भी ना मिले। फिर जाने कैसे छुप छुपा के रातन लोवे स्टेशन पे पहुंचा और एक गाड़ी वैसे ही गुजर गई। वो सुनिए कि गाड़ी जो सारी गाड़ी काट दी ही वो वाली ही, बस अगली गाड़ी में वे कहीं आया। जब मिलिट्री पुलिस आई उनने अगली जो ना रेलवे जो भी गाड़ी ही वो जान दी। वहाँ पे हम आया और हीन 15-20 दिन वाल्टन स्टेशन पे ऐसे बेयार मददगार दुनिया जैसे भी खाना शाना देवे। तो जितनी मुश्किल हमारा बुजुर्गन ने बर्दाश्त करियाँ, हमारा बहन भाई बाप दादा दादी जो भी ही नानी नाना वे शहीद होया, हाँ उनका बच्चा उनका माल उनकी जान सब ने लूट के लेगा वह हिंदू। तो आज की कौम में तो पता ही ना है। ये मैं आप लोग यह वजह से बता रहा हूँ कि आज की कौम में ये पता लगना चाहिए कि हमारी कौम ने कहाँ करो है। तो इस सारा पाकिस्तानी लोग सारा मेवाती लोग ये इन्फॉर्मेशन मैं बताना चाहूँ कि हमने इंतहाई ज़्यादा मेहनत करके खून बहा के अपना सब कुछ घर बार लुटा के और फिर जाके पाकिस्तान हासिल करो। और ये पाकिस्तान की हमने कदर करनी चाहिए, हमारा जज्बान की हमारा जो कुर्बानी है उनकी आज कदर करनी चाहिए और उन लोग दुआ हमने देनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अगस्त 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, तो उस सिलसिले में ये प्रोग्राम में शामिल थी ये चीज़। और मैं ये मेरा ताल्लुक़ मेव कौम से है और मैं समझता हूँ कि मेव कौम बहुत बड़ी बहादुरी वाली रवायात के हामिल है। और दुनिया के अंदर आज तक भी जितनी हिजरत हुई हैं, मेव कौम की सबसे बड़ी तादाद ने इंडिया से पाकिस्तान की तरफ हिजरत की थी और बहुत ज़्यादा कुर्बानी मेव ने दी थी, जिनके अंदर उनके तमाम मुआशी जो सहूलतें थी वो तमाम छोड़कर, अपने कारोबार छोड़कर और अपनी तमाम दौलत व जायदाद छोड़कर सिर्फ 3 कपड़े लेकर वो पाकिस्तान के लिए चल पड़े थे। ये निहायत हुब्बुल वतनी की आला तरीन मिसाल है दुनिया के फोरम पे अगर इसको देखा जाए। मेव कौम जिंदाबाद, पाकिस्तान ताबिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं खलील ख़ान पाकिस्तान मेव एजुकेशनल फोर्स और का चेयरमैन जनाब सईद इकबाल मेव की तरफ से एक तो जो पाकिस्तान को यौम आज़ादी है बाकी मुबारक दूँ सारा पाकिस्तान को और बिलखुसूस मेव कौम को। हिंदुस्तान जब तकसीम हुए तो हिंसू मुत्तहिदा हिंदुस्तान में जो इलाका हिंदुस्तान में शामिल हुआ हूँ जो लोग हिजरत करके पाकिस्तान आया उनमें शायद सबसे बड़ी तादाद बहैसियत एक कौम या एक कबीला के वो मेवन की ही। लेकिन हम तारीख़ का वे गुमनाम सिपाही हैं जिनकी ना कोई यादगार है
ना कदी हमारा कोई जिक्र हुयो तारीख़ में और ना ही कोई ने यहाँ पे कोई हमारी तहसीन करी। लेकिन बहरहाल वक्त गुजर गो, आज हम आगे जा रहे हैं। हमारी चौथी पाँचवीं पीढ़ी पाकिस्तान में परवान चढ़ रही है और वे सब पाकिस्तानी शहरी हैं और पाकिस्तान से उतनी ही मोहब्बत करे हैं जितनों के कोई और करे है। और मैं यह चीज़ को यकीन दिलाऊं हूँ कि हम पाकिस्तान की तामीर में, तरक्की में हर लिहाज से उतनी ही मेहनत और कोशिश करेंगे और करता रहेंगे जो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। जो हमने कुर्बानी दी वो हमारा हक हो या तारीख़ ने हमारे ऊपर एक जबर मुसल्लत करो हो। लेकिन एक चीज़ की मैं वजाहत कर दूं कि आज हमारी बरादरी ख़ास तौर पे मेयो तकसीम है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। वासु अलावा काफ़ी मुसलमान हैं जो हिंदुस्तान में रहा, वे शायद वाह वक़्त हिंदू जहनीतें ना समझ सका, लेकिन जो कायदे आज़म ने कही, जो दो कौमी नज़रिया हो, वक़्त ने साबित कर दियो कि वाकई मुसलमान एक अलग कौम है और एक अलग की तहजीब है, अलग रहन सहन है। और वो वक़्त जो हम पाकिस्तान आगा वो हमारा वो फैसलो, हमारा बुजुर्गन को फैसलो, वह कुर्बानी आज सही साबित हुई हैं। बस बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ब्रिगेडियर बाबर मेयो और जा टॉपिक के ऊपर मुझसे इजहार ख्याल करने के लिए कहा गया है। मेयो कौम, मेयो बिरादरी नहीं बल्कि मेयो एक कौम है और तारीख़ पाकिस्तान में जितनी कुर्बानी मेयो बिरादरी ने, मेयो कौम ने बहैसियत एक कबीला के दी है, ये तारीख़ इस्लाम में किसी ने भी किसी इस्लामी मुमलकत के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दी। मैं यहाँ एक चीज़ वाज़ह करना चाहूँ कि मेयो बिरादरी के 5 लाख लोगों ने हिजरत करी। इतनी बड़ी हिजरत तारीख़ इस्लाम में, सबसे बड़ी हिजरत सिर्फ मेयो कौम की इस्लाम के लिए है। और फिर यहाँ में वो कुर्बानी जिनको कहीं रिकॉर्ड ना आया हो, 5 लाख मेयो जिन्होंने हिजरत की, 1 लाख मेयो शहीद हुए। और इस मेयो कौम के उस 1 लाख में हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी माँ, हमारे ख़ानदान, कोई ख़ानदान 70% शहीद हो गए, कोई ख़ानदान 100% शहीद हो गए। इतनी बड़ी कुर्बानी आज तक नहीं। लेकिन हमें एक चीज़ जिसमें इसमें कमी है कि हमारी मेयो बिरादरी की ये जो कुर्बानी अभी तक रिकॉर्ड ना हुई, जिनके ज़िम्मेदार शायद मेरे जैसे लोग हैं कि जिनके पास को अल्लाह ताला ने माली हैसियत दे दी। इंशाअल्लाह हम यह भी रिकॉर्ड करेंगे। पाकिस्तान के साथ मेयो बिरादरी पहले भी खड़ी, आज भी खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। और ये वो कौम है जाए कि यह मुल्क में बनाने के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, मेयो कौम पाइंदाबाद। सब भाई लो अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त की आमद है। आप सब लो देखन सुनने वाले लो 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद, आज़ादी को दिन। साथ में गुजारिश कर रहा हूँ कि जब मौका मिले बात पे गौर ज़रूर करियो, सोचियो ज़रूर कि जिन हमारा बुजुर्गन ने पाकिस्तान बनाने के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी वो हमारी कौम है। क्या आज किसी जगह पर हमारे उन बुजुर्गन को, उन शहदान को, उन फौजीन को, उन हिजरत का काफलान का मुसाफरन को कहीं नाम आवे है? कहीं गुमनामी में भी कहीं नाम आवे है? दूर दर दूर ढूंढान सुना मिले। मेरी आप सबन सु एक दिली तमन्ना है कि आप अपना बुजुर्गन की यह विरासत है, यह अमानत है, यह तरीका से संभालो जा तरीका से उन्होंने एक जान होके मुल्क बनाए हो। वह दिन ना कोई पटवारी हो, ना कोई यहूदिया हो, ना कोई जियालो हो, ना कोई महाजर हो। वह दिन सिर्फ और सिर्फ हम पाकिस्तानी और मुसलमान। आज बदकिस्मती से हम फिरकान के अंदर बट गा, पार्टी इनके अंदर बट गा, लीडरन की चापलूसी में पड़ गा। अल्लाह करीम के वास्ते यह चीज़ से निकलो। हमारा बुजुर्गों की रूह बहुत दुख में होएंगी कि हमने या काम के हमारे पाकिस्तान बना के दी हो इन बच्चों को। आप आज़ादी को दिन ज़रूर मनाओ, लेकिन बहैसियत एक कौम के उन्होंने हम लोग पाकिस्तान दियो हो और अब हमने मिल के पाकिस्तान बनाना है, ताकि उन बुजुर्गन की रूह जो हाँ वो जहाँ से भी देखा हमने खुश हो। वहाँ पाकिस्तान पाइंदाबाद,
14 अगस्त आगे है, वह में जितनी कुर्बानी मेयो कौम ने दी हमारा एजेंडा में शामिल हो, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मुकर्रीन वहाँ पे बात ना कर सका कि वाहिद कौम है या मुल्क की जो सिर्फ इस्लाम का नाम पे या मुल्क का नाम पे हिजरत करके आई, जिन्हें अपना सब कुछ छोड़ो, अपनी ज़मीन छोड़ी, बच्चा छोड़ा, जायदाद छोड़ा, या मुल्क पाकिस्तान के लिए ही ना आया। तो मैं अपना नौजवान नस्ल को ये पैगाम देना चाहूँ, जितनी ईमानदारी से हमने कायद-ए-आज़म की तहरीक में हिस्सा लियो, पाकिस्तान की तहरीक में हिस्सा लियो या मुल्क की तरक्की में हिस्सा लियो, वो हमारा लोगन की इंडिविजुअल की कामयाबी यह बतावे हैं कि हम कितना सख्त जान और मेहनती लोग हैं और अपना आप बदलन की कितनी एफर्ट्स कर सकें। हमारा बुज़ुर्ग सच्चा हा, नेक हा, दिल का साफ हा। मैं अपनी नौजवान नस्ल से भी यही तवक्को रखूँ हूँ कि वे बड़ी साफ़ सुथरी वरासत का मालिक हैं, ज़मीन का मालिक हैं, बड़ा साफ़ सुथरी जो रवायात हैं उनका मालिक हैं। वे उन्हें ज़रूर पढ़ें, उन पे ज़रूर काम करें। हमारा बुज़ुर्ग सच्चा हा, ईमानदार हा और दूसरा को ख्याल करने वाला हा। मैं पूरा दिल से एक दफ़ा फिर सारा दोस्तों को शुक्रगुजार हूँ, जो ही आया, जो ना आ सका, उन तक मेरा पैगाम मैं चाहूँ पहुँचे और वे अपना बुज़ुर्गन की जो रवायात हैं उन पे काम करें। और मैं पाकिस्तान की तरक्की के लिए दुआगो हूँ। आखिर में पाकिस्तान पाइंदाबाद, मेयो कौम जिंदाबाद। आज का या मेयो पंचायत का मौका पे मैं बहुत अच्छो समझू हूँ कि यूँ एक गेट टुगेदर हुई या मैं मेयो इकट्ठा हुआ और एक अच्छो हमारे लिए हुआ है तासुर के हम इकट्ठा होकर कुछ बढ़िया काम कर सकें। मेयो कौम बिलखसूस पाकिस्तान के लिए हम कुछ ना कुछ ऐसा काम कर सकें कि तालीम और तरबियत से हम बच्चा ने आगे लेके जा सकें। जहाँ तक 14 अगस्त का हवाला, सुबह 8 अगस्त को महीनों तो मेयो कौम की बहुत बड़ी कुर्बानी यहाँ पाकिस्तान बनने के बाद। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान का बनने का हवाला से अभी बात हो रही है, जामिया सलीम साहब ने, ताहिर साहब, चौधरी अरशद साहब ने अपनी बात बताई है। पाकिस्तान बनना के लिए जितने मुसलमान पाकिस्तान मेयो कौम की कुर्बानी हाँ सबसे ज़्यादा हाँ कि हमारी तो पैदाइश यहाँ की है पाकिस्तान की, लेकिन हमारे जो बाप था, चाचा, ताया, सारा जो इसे बतावा हाँ कि जी जैसे जैसे घर बार छोड़ के आया, हिजरत करके आया, बहुत मुश्किल काम हो। तो हमारी ताई ही वो बतावे कि जी जो जा वक्त थी ने अमृतसर में आके नहीं, फिरोजपुर में वो गाड़ी ट्रेन ही जो रोक दी और रोक के नहीं फिर सब इनको सिखन ने जैसे जुल्म करो, कत्ले आम करो, तो लाशन के नीचे छुप के नहीं, बस अल्लाह ने ज़िंदगी देनी। तो देखो उनने पता हो कि पाकिस्तान बनना के लिए कहाँ कुछ करोगे हो। हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं, हमारी कौम ने इतनी कुछ करो कि काई कौम ने इतने पाकिस्तान बनना में काई को हाथ ना है। हर चीज़, घर बार, सब चीज़ छोड़ के खाली हाथ पाकिस्तान है। ये बहुत बड़ी बात है। आजकल हम यहाँ से कोई घर छोड़ के एक दिन के लिए जाना पड़े तो हम वाकई लिए तैयार ना। बाहर और पाकिस्तान में जो हमने या कदर करनी चाहिए और उन लोगों ने पता हो कि कैसे पाकिस्तान मार्जे वजूद में आया। तो बाकी अल्लाह ताला पाकिस्तान है कायम दायम रखे। तो मेयो कौम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मेयो कौम ने बहुत बड़ी या के लिए कुर्बानी करी और ये पूरी की पूरी कौम है जो पाकिस्तान में ना रही पहले और हिजरत करके आया, सिर्फ कलमा का नाम पे, इस्लाम का नाम पे पाकिस्तान में आया। अपनी ज़मीन, अपना कारोबार, घर बार सब कुछ छोड़ो, बहुत बड़ी कुर्बानी है। यहाँ आके फिर नए सिरा से आबाद, नए सिरा से घर बनाना, ज़मीन आबाद करनी, या के लिए बहुत बड़ी काविश और कुर्बानी मेयो कौम ने दी है। और या का आबा व अजदाद हिंदुस्तान से आया, अब दूसरी तीसरी नस्ल या वक्त मौजूद है, लेकिन ये सारा मुहिब वतन लोग हाँ इन्हें जैसे खून मेहनत करी ही ना कि पाकिस्तान में अपनी ज़मीन भी आबाद करी, घर भी बसाया, अपना बच्चा भी पढ़ाया और सारी मुश्किलात के बावजूद, सारी नई जगह के बावजूद भी बहुत आसान तरीक़ा से मेयो यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ और अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान में मेयो हर शोबा ज़िंदगी में मौजूद हाँ, मुलाजमत में भी, कारोबार में भी, ज़मींदारों तो इनको पुराना पेशा है ही है। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए भी काम करूँगा और अपनी कौमी जो जिम्मेदारी उन्हें भी पूरी करेंगे इंशाअल्लाह।